Good morning, kids. Today I bring for you book exercise, class 3rd, English reader, chapter number 4. First exercise is tick the correct option. Here is a questions and there is some options. Which option is correct? You do tick mark on that. First is what is this story about? यह story किसके बारे में थी? A. Which, B. Author's grandmother and C. Author. A. Which. नाउ सेकंड, हु इज़ टेलिंग द स्टोरी? यह स्टोरी कौन कह रहा है? ए. ऑथर, बी. ऑथर्स मदर, सी. ऑथर्स ग्रैंड मदर. सी. ऑथर्स ग्रैंड मदर. ऑथर मीन्स होता है किड्स कहानी लिखने वाला, स्टोरी लिखने वाला होता है ऑथर. अंडरस्टैंड. थर्ड इज विच इज़ डू नॉट हैव. विच इज़ के क्या नहीं होता है? ए. फिंगर्स, बी. हैंड्स और सी. फिंगर नेल्स. सी. फिंगर नेल्स. Fourth, a real witch is always bald because A. They do not like hair, B. They get their hair cut, C. Not a single hair grows on their head. Yes, the answer is C. Not a single hair grows on their head. Okay. Now come on, B exercise. Complete the following sentence. So kids, there is some incomplete sentence. You have to do complete the sentences from your chapter. So this work do by yourself. Now come on, next exercise. C exercise. Answer the following question. Kids, here is less space for answer. So this exercise we doing in our notebook. Okay. Now come downside, vocabulary section. A. Phrase. Phrase is a part of the sentence. It is a group of words which convey some meaning but incomplete as. Here is example. Children are going. अब children are going ये लिखा है तो children जा रहे हैं, लेकिन children बच्चे कहाँ जा रहे हैं ये नहीं लिखा है यहाँ पर, तो इसको ये इनकम्प्लीट है. अब इसे हम फ्रेज़ के थ्रू कंप्लीट करते हैं. कैसे कंप्लीट करते हैं? चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल. अब ये सेंटेंस कंप्लीट है. अंडरस्टैंड. तो हम फ्रेज से क्या करते हैं? सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. सो कम डाउन साइड्स, देयर इज एक्सरसाइज. हियर आर गिवन सम फ्रेज, यूज़ देम इन योर ओन सेंटेंसेस. यहाँ पर कुछ फ्रेज दिए हैं और उसे अपने सेंटेंसेस में उसे कंप्लीट करना है इन सेंटेंसेस का यूज़ कर कर. फर्स्ट इज़ फॉर माई सेक. तो अभी हमने इसे कैसे कंप्लीट किया? प्लीज़ डू दिस फॉर माई सेक. सेकेंड, इन अ फ्यू डेज़. वी आर कमिंग इन अ फ्यू डेज़. सो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है. थर्ड इज़ एट होम. वी आर एट होम. फोर्थ, बिहाइंड द डोर. देयर इज़ अ कैट बिहाइंड द डोर. अब ये यहाँ पर इनकम्प्लीट है. हम इसे देखिए किस तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं. हम जिस तरह से कंप्लीट करते हैं उसे कहते हैं फ्रेज़. क्या कहते हैं उसे? फ्रेज़. फिफ्थ इज़ इन टू द पॉन्ड. देयर आर डक्स इन टू द पॉन्ड. सो यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज. बी. Fill in the blanks with the help of the phrase given below. Here is the help box for you. help box में कुछ यहाँ पर incomplete sentences हैं और help box में इनके phrase लिखे हुए हैं जिनको आपको यूज़ कर कर sentence को complete करना है. So first is mother cooked dinner. mother किसके लिए खाना बना रही है? So help box में देखिए आप. Yes, for all the guests. Second, drivers must stop their cars at the red lights. Third, the doctor asked the nurse to hurry up. A thief always lives in fear. Yes. Fifth is bunches of grapes are hanging. कहाँ पर hanging है? On vine. So you understand this? Now come downside. There is a topic of grammar enrichment. यहाँ पर आपको grammar के लिए बताया गया है. In previous class we also use about has and have. Has is used for always singular and have is used for plural. So look downside, there is the example also. He, she और it क्या होते हैं? singular. तो singular के साथ हम क्या यूज़ करना है? has. और we, you, they, these and those ये सब क्या होते हैं? plural. और plural के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? have. Understand? So come, there is the exercise. A exercise. Now fill in the blanks using has or have. First is I. आई सिंगुलर और प्लूरल. आई जो होता है, आई और यू हमेशा प्लूरल होता है.
तो आई प्लूरल है तो हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे? हैव। आई हैव 1 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। किड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपको हैज़ हैव यूज़ करना है तो आप उसके फिल इन द ब्लैंक्स के पहले के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमें क्या यूज़ करना है, और हर सेंटेंस को 2 टाइम रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। नाउ सेकंड इज़ व्हेन शी कम्स टू माई हाउस शी ऑलवेज डैश अ बैग ऑन हर शोल्डर। शी इज़ सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल, सिंगुलर। शी इज़ सिंगुलर। थर्ड इज शेरी। शेरी डैश बीन विथ दिस फर्म फॉर ओवर 10 ईयर्स। शेरी किसी का नाम है, सिंगुलर है यहाँ पर, तो क्या यूज़ करेंगे हम? हैज़। फोर्थ इज जॉनी एंड टॉनी। 2 बॉयज़ का नेम यहाँ पर आया है, तो क्या है ये? प्लूरल। प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। फिफ्थ इज डैश यू प्लास्टिक टॉय इन योर कबर्ड। ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपके कबर्ड में प्लास्टिक टॉयज़ हैं? तो जब क्या आपके पास ये है या क्या ये है, जब इस तरह के जो भी क्वेश्चन आता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम हमेशा सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो अब डैश यू प्लास्टिक टॉय इन योर कबर्ड, तो क्या आएगा यहाँ पर? यू प्लूरल है तो क्या यूज़ करेंगे हम? हैव। हैव यू प्लास्टिक टॉय इन योर कबर्ड। नाउ सिक्स्थ इज दीज कार्स डैश म्यूजिक सिस्टम। दीज कार्स सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल, तो क्या यूज़ करेंगे हम? हैव। गुड। नाउ कम ऑन नेक्स्ट एक्सरसाइज बी। अ पैसेज इज गिवन बिलो, फिल हैज़ और हैव इन द स्पेस गिवन। सो किड्स, अब तक तो आप फिल इन द ब्लैंक्स में करते थे, बट नाउ यू हैव टू डू in the paragraph this exercise. Mr. Verma is a businessman. He dash his own bungalow at Manson Road. अब मिस्टर वर्मा इज सिंगुलर और प्लूरल? सिंगुलर है तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। ही डैश 2 sons, तो ही आ गया वापस से, तो क्या है ये? सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। द यंगर सन्स नेम इज़ मानव। ही डैश, अगेन ही आया है तो हैज़। He has a bad tempered, whereas the elder son Abhay is good tempered boy. Both dash their own motorbikes. अब both का यूज़ हुआ है, मतलब दोनों, तो सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल, तो हम क्या यूज़ करेंगे? है। ईच मोटर बाइक डैश अ डिज़ाइन नंबर प्लेट ऑन इट। हर एक मोटर बाइक, एक एक के बारे में बोला गया है, तो क्या है ये? सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। दे ऑलवेज डैश फन एट वीकेंड्स। दे सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। आई डैश ऑल्सो जॉइन दैम दिस वीक। आई हैव। गुड। व्हेन दे रिटर्न होम ऑन द वे दे ऑलवेज मीट एन ओल्ड मैन। जब वो घर पर आते हैं, लौटते समय, जब वो घर पर लौटते हैं तो आते समय एक ओल्ड मैन से मिलते हैं, तो ओल्ड मैन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। द ओल्ड मैन हैज़ अ स्टिक इन हिज हैंड। हिज आइज डैश स्पेक्टिकल्स। उनकी आँखों पर क्या है? चश्मा है, तो उनकी आँखों पर, तो उनकी सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। सो यू अंडरस्टैंड किड्स अबाउट हैज़ एंड हैव? गुड, डू प्रैक्टिस इन योर रफ कॉपी। नाउ डाउन साइड देयर इज स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स होती है हमारी कन्वर्सेशन करने की स्किल कितनी पावरफुल है। सो हियर योर फ्रेंड हैज़ अरेंज अ फैंसी ड्रेस पार्टी ऑन हिज बर्थडे. All the friends have to come in the fancy dress and introduce themselves. What would you like to be in the fancy dress party? How would you introduce yourself? So kids, यहाँ पर आपके फ्रेंड ने बर्थडे पार्टी अरेंज की है और उसने कहा है सभी फ्रेंड्स को फैंसी ड्रेस में आना है और अपने लिए कुछ वर्ड्स कहने हैं, अपने लिए बताना है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। जैसे अगर आप मंकी बनकर गए, एलिफेंट, मैंगो, ट्री, कुछ भी बनकर गए। जैसे अगर ट्री बनकर गए तो आई एम अ ट्री, माई कलर इज़ ग्रीन। इस तरह से आपको आई हैव मैनी लीव्स, आई हैव मैनी ब्रांचेस। तो अब इस तरह से कन्वर्सेशन आपको वहाँ पर अपने फ्रेंड उस बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड के साथ करना है। सो ये गेम है, ये आप अपने फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ प्ले कर सकते हैं। क्लियर? नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज। राइटिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल तो हमारे बोलने से हमारी स्किल पावरफुल होती है, राइटिंग स्किल हमारे लिखने से होती है। सो किड्स, हियर इज़ सम पिक्चर फॉर यू। इस पिक्चर्स को देखकर आपको ये इनकम्प्लीट स्टोरी को कंप्लीट करना है बाय योर सेल्फ। क्लियर किड्स? ओके। सो किड्स, ऑल द वर्क डू इन अ गुड हैंड राइटिंग।
and do complete your work, and then learn, and now then do in your rough copy. Clear? Have a good day.